Corona, Corona. Yes, this pandemic has opened up new avenues of learning. The education system has undergone a complete revamp. Welcome to the era of online learning. Let's talk to an expert about his views on online education. I welcome on board Mr. Jay Leelawala. So let's welcome Mr. Jay Leelawala. So my first question to you is, there is an ongoing debate about whether online education is good or bad. So your views on it both as a parent and as an educator. Okay, so I have my son who is 10-year-old. He's studying into grade 5th. Okay, so we as a parent, first of all, as a parent is that we have to be flexible enough in conducting classroom sessions. So currently the pandemic is going on, and we should be able to understand as a parent that something is better than nothing. Exactly. Right. Anyways, if at all, if we don't give them a classroom, the only option right now we give them is phone. So anyways, screen time is going to be same. And Exactly. that parents are not understanding today that if at all, if not teachers, then those cartoons, then those games, those probably वो hitting वाले games or fire वाले games, I think destructive games से तो teachers के सामने आधे घंटे बैठे रहेंगे, that is far more better. So it is my perspective as a parent. I completely welcome, even if I'm not an educationist, I have thoroughly welcomed the online method of learning. I should appreciate that with online method, basically teachers have to do more preparation than offline sessions. Exactly. So that we as a parent have to understand that teachers are putting the level high in terms of engaging the classroom. It's not easy to take 40 students online and conduct. So we must appreciate. I totally welcome the decision of online classroom. Yeah. I like so this idea. As such, children are already using the screen time for watching games and all. So it's better they use it for studying. So I think this is a very good thing. But my next question is that we have seen this only in Gujarat right now. All states, they are already going online. Everybody in the world is taken to online education, shopping, whatever it is. So why do you think is it only related to our state, or do you think it's a challenge for everyone? So first of all, let me tell you, India इतना diversified है, and Gujarat state की मैं आपको बात करूँ, so Gujarat is a basically land of entrepreneurs. यहाँ की हवा में entrepreneurship बढ़ी हुई है. So probably यहाँ की हर एक चीज business mind से देखी जाती है. So that's the problem. Okay. So for example, अगर अभी pandemic नहीं चल रहा होता ना, तो अभी हम डॉक्टर को यही बोलते कि डॉक्टर लोग डंडा लेके बैठे, लेकिन आज जान बचा रहे तो उसके लिए हम सबके लिए वो भगवान है. फिर भी आज बहुत सारे लोग बोल ही रहे हैं कि भाई कोरोना को भी धंधा बना दिया है. ठीक है. So I mean, because Gujarat is a land of entrepreneurs, we give entrepreneurs to countries. So that's the aspect. हम हर एक चीज को पैसे से तोलते हैं. हर एक चीज को हम let me tell you, let me give an example. That few of my good friends have paid money to their school for their fees. Okay. And I have simply asked in just a normal way कि भाई तू स्कूल भेजने वाले बच्चे को ऐसे अगर चालू हुआ तो बोला पैसा भरा है तो वसूल तो करेंगे ना. So I mean they don't care about what is so going on. They must be very much curious about what is happened to their money. So हुआ क्या गुजरात में basically एक तो it is not for fault of a parent. I would say वो greedy schools, वो लालची schools जिनको ये पता नहीं था कि अभी तो pandemic चल रहा है बॉस, अभी फी नहीं मांगनी चाहिए हमको. तो मुझे लगा कि ये जो कोरोना के बाद सबसे बड़ा बर्निंग फैक्टर जो बाहर आया वो फी का आया. और गुजरात में तो लोग मतलब डायरेक्टली अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करते हैं, वो जोड़ लेते हैं इमीडिएटली कि नहीं इनका बस जलने वाला है, बस का डीजल जलने वाला है, ना ये लोग खाना देने वाला है, तो क्यों वो फी मांग रहे हैं. So I mean there was a disconnect. So some parents say that
school should charge, half the amount. If it's say 40,000, the fees are 40,000, then the school should charge only 20,000. Some say they should not charge at all. Then there is another point of view that if schools don't charge fees, how will they pay to the teachers? So teachers are saying we want our salary also. Teachers are also saying that if the school won't charge, how will they pay to us? We also need our salary. We have to run our home. So this is a whole vicious circle. Parents, school, teachers. So how? What do you think of this? Okay. So मैं आपको दोनों aspects share करता हूँ. So let me just come to schools first. Yeah. So schools are in different categories. First, the category of schools who have started recently. Yes. Second, who are mediocres, who have spent around 5 to 10 years of time. And third, who are old players. Right. Now, we have to, segregate this category of schools, first of all. Right. So, first of all, those old schools who are running with more than 10 years of time, right. I think they should be. Why? Because they are running schools. वो ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास इस साल पैसे चलाने के पैसे नहीं है. You can't say. Because 10 साल हो गए, तुम्हारे पास उतना भी पैसा नहीं है क्या? First. Second, जो लोग मीडियोकर्स हैं, उनको कट ऑफ पे चलना चाहिए. कट ऑफ पे कैसे? कि it should be need based. They should not charge every penny they are charging in a regular school. Right. Because मैं भी स्कूल रन करता हूँ तो मैंने पूरा चार्ज नहीं किया है. मैंने बोला कि अभी आप जितना जो लोगों को तकलीफ है जितना भर पाते हो भरो, उसके बाद हम देख लेंगे. थर्ड इंस्टॉलमेंट जब आएगा, मैंने उसको इंस्टॉलमेंट में कर दिया. तो दोज हु आर मीडियोकर्स, दे हैव टू सेग्रीगेट इन एन इंस्टॉलमेंट. थर्ड, दोज हु आर न्यू प्लेयर्स. बॉस, अगर आप न्यू प्लेयर हैं और आपने एक नया स्कूल ओपन किया है, तो एज अ एजुप्रेन्योर आपको पता होगा कि पहले 5 साल तक मुझे पैसे डालने ही है, ये साल को इस तरीके से लेके चलो. सो मैंने आपको जो वर्ड यूज किया, ग्रीडी स्कूल्स. सो दोज ग्रीडी स्कूल्स जहां अभी तक खुला भी नहीं है और फी मांगना चालू करोगे तो लोग हल्ला करेंगे ना. भाई लोगों को 700 लेने दो, बाहर जाने दो, 5 पैसा कमाए दो, बाद में मांगो ना. जैसे मेरे बच्चे की स्कूल में, आई रियली अप्रिशिएट दैट स्कूल, दैट आज 3 महीने हो गए, फीस का एक भी मैसेज नहीं आया. दैट्स द ओल्डेस्ट school of the city. Okay. So they know they are paying to teachers. They are doing all the activities. They have online studies. They have not done any single message. So that's the credibility, and that is why I'm appreciating my school in front of you. Why? Because they have done. अगर आपके 10 साल हो चुके हैं तो आपके पास है फंड. क्यों आप इतना टेंशन कर रहे हो? Exactly. And अगर आप मीडियोकर है तो वेव ऑफ करके थोड़ा थोड़ा लो ना. आप इमीडिएटली गले में हाथ डाल के मांगने जाओगे तो पब्लिक त्राहिमाम तो करेगी. So that's the perspective of schools. Okay. Now let's just come to the perspective of parents. Right. Now मुझे ना रोना आता है आज के पेरेंट्स के ऊपर. रोना क्यों आता है? रोना आता है, तरस आता है कि ये माइंडसेट है मतलब पेरेंट्स के कि वो लोग फीस के लिए झगड़ा कर रहे हैं. Now let me tell you, मैं आपसे पूछना चाहूंगा मयूरी कि आपका क्वारंटाइन पीरियड जो था उसका लाइट बिल कितना आया? सर काफी लाइट बिल काफी बोलो ना, एक अमाउंट बोलो. ओके, 10,000. 10,000 है. मेरा 25,000 आया तो मैं शर्मा नहीं रहा हूँ क्या? 10,000 आया, ठीक है. राइट. आप एज अ पेरेंट इसको कंपेयर करो लाइट बिल के साथ. क्या आपने गवर्नमेंट के सामने बोला कि भाई इतना बिल क्यों आया, हम तो अभी कुछ कमा नहीं रहे हैं? अरे भाई, जिन लोगों को तुमने वोट दिया उन लोगों को मांगने जाओ ना, जो बेचारे स्कूल चला रहे हैं, जो आपके बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, जिन डॉक्टर की मौजूदगी से आज हम लोग जिंदा हैं, जो वैक्सीन बना रहे हैं, उनको बनाने वाले टीचर्स हैं. आप लड़ाई स्कूल के सामने नहीं कर रहे हैं. आज एज अ टीचर जितने लोगों को मैंने ना बोला है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है आप नहीं जानते. पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं, सारे अच्छे टीचर्स अभी डिमोरलाइज हैं. आज की डेट में अच्छे एजुकेटर्स लाइक मी डिमोरलाइज है. हमको तरस आता है पेरेंट के ऊपर कि इनको क्या बताएं. ये 25,000 रुपए, 40,000 बोल रहे हैं ना आप, 40,000 पूरे साल की फी है, बराबर. अरे 40,000 का लेट्स अज्यूम दैट अगर डिवाइड बाय आप 12 करोगे ना तो महीने का 3-3,500 आया. उतना आपका बिल आया, लाइट बिल. आपने उन लोगों को बोला जिनको आपने वोट दिया. आप उन लोगों को क्यों कोस रहे हो? जो लोग आपके बच्चों को खड़े करने वाले आगे जाकर के, जिनके बल मतलब जिनकी मेहनत से आप खड़े हुए,
सो पेरेंट्स पे तो मुझे बिल्कुल तरस आता है, हंसी आती है एक प्रकार से मुझे कि क्या मेंटालिटी के लोग हैं। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल। हम लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, अब हम लोग जब बाहर घूमने जाते हैं तो हम लोग होटल्स हायर करते हैं, एक एक दिन के हम लोग 3,000 से 5,000 रुपए हायर करते हैं। पूरा दिन होटल में बैठे रहते हैं क्या? नहीं, पूरा दिन होटल में बैठे रहते हैं? नहीं। हम रात में वहां सोने जाते हैं, दिन में नहा धो के तैयार होकर के निकल जाते हैं, राइट, फिर भी भाड़ा पूरा देते हैं? राइट, देते हैं कि नहीं देते हम या लोग? या तब तो नहीं बोलते भाई कि भाई इतना ही पढ़ाई कर रहे हो तो इतना ही पैसा लो ना, ठीक है, आपका मेडिक्लेम होगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा। पैसा कब मिलता है? जब कुछ होता है तो, बाकी तो पैसा गया ना, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस होगा। प्रॉब्लम ये है कि जो 20% लोग वेले बैठे हुए हैं, जिनको घर में कुछ काम नहीं है, जिनके घर में बच्चे भी नहीं है, जिनके घर में कोई पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, वो बैठे बैठे फेसबुक पे मार रहा है मैसेज पे मैसेज मार रहा है, कोई फी नहीं है, स्कूल वाले धंधे लेके बैठे हैं, और इनके मतलब और भी लोगों के पास भी तो कुछ काम नहीं है, तो वो पढ़ पढ़ के लोगों के दिमाग जो है ना वो नेगेटिव हो गए, भूल गए हैं कि आज की डेट में टीचर्स चले गए ना तो अगले साल स्कूल्स को टीचर्स ढूंढना भारी पड़ेगा। Exactly, that's very true. I agree. They will suffer। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं, ये पेरेंट्स भी इतने होशियार है, मैं आपको बता दूं, ट्यूशन के 2,500 रुपया देंगे, ये स्कूल की फी हम नहीं देंगे। You're right. ट्यूशन में भी I have ऑनलाइन seen पढ़ाई कर रहे हैं। such parents. You are right. होता क्या है इंस्टीट्यूट में, 11 और 12 में पब्लिक स्कूल जाती नहीं है, ट्यूशन जाती है, 1-1 लाख रुपया भरती है ट्यूशन का, और स्कूल में सिर्फ अटेंडेंस मारी जाती है, और ये स्कूल वालों को भी पता है बॉस, तब लोगों को पैसा नहीं दिखता है, लेकिन अभी पैसा दिख गया। सी मैं ये सब ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं प्री स्कूल चलाता हूँ, और प्री स्कूल से और बड़ी स्कूल का कोई याद नहीं है। मैं पेरेंट्स को अवेयर कर रहा हूँ कि बॉस आप पैसा वैसे ही देने वाले हो। वो 15-20% जिन लोगों को अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं पढ़ी हुई है, आप उनके, यू डोंट बिलीव मयूरी, आई हैव एम्पल मैसेजेस फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, फ्रॉम पेरेंट्स साइड के सर कुछ करिए, कोई वीडियो बनाइए, बट मैंने मतलब मुझे पता है कि ये जनता जो है पता नहीं समझेगी नहीं समझेगी, बट फॉर्चुनेटली हमारा ये बातचीत हुआ तो मैंने बोला ठीक है चलो थोड़ी राय देते हैं। And just from few parents point of view, like I have seen few parents really struggling, like both the parents are working, right, and they are middle class people, and both of them are working. Now they have 2 children, so now for both of them they have to make adjustments for the laptops, mobiles, and they are not there also available. So then those few parents, there is a category of those few parents who are literally facing and struggling these challenges. I understand. Then they are also against, okay, no, we are not comfortable with online, So then what do we say to them, or how can we deal with that issue? Yes. तो वो पेरेंट्स जिनको सही में स्ट्रगल हो रही है, तो उनको मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज योर विलिंगनेस? ऐसा बोलते हैं जहां चाह वहां राह। अगर आपको चाह है अंदर से कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, तो जाओ और चेक करो, सुपर 30 मूवी देखी होगी आपने? हाँ, देखी। कहाँ अरे आज की डेट में भी मैंने अभी परसों एक आर्टिकल पढ़ा था, महाराष्ट्र में एक फार्मर ने अपने घर की गाय बेच के एक मोबाइल लिया, सो दैट उसका बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर पाए। अंडरस्टैंड दिस। आप सिटी में हो, आप जिस मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हो ना, आप शहर में हैं, और बाइंग अ सेकंड हैंड फोन, इट्स नॉट दैट बिग डील। कम ऑन, पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना ये क्वेश्चन है, कैसे पढ़ाना है फिर वो दूसरा क्वेश्चन है। पढ़ाना ही नहीं है ना, तो मेरे पास 50 क्वेश्चन है, 50 चीजें हैं स्कूल के सामने बोलने के लिए, आज नहीं बाद में भी। सही है। प्रॉब्लम ये है कि विलिंगनेस, दिल से चाह है कि नहीं पढ़ाने की। पढ़ाओगे ना, पढ़ाने का मतलब मकसद होगा ना, तो आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी अरेंज करोगे। बॉस, आपके आजू बाजू में बच्चे पढ़ते होंगे, ढूंढ लोगे और बिठा दोगे साथ में। प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम विलिंगनेस की। That is what I wanted to say. Right. So I think it's a very nice, positive, interactive session with you. One last few lines of message you want to give to everyone, parents, educators, teachers. Everybody. Yes. सबसे पहले आप समझ लीजिए, सबसे पहला मैसेज मैं पेरेंट को देना चाहता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि स्कूल की फीस बंद करवा के आपने कोई बड़ा तीर मार लिया है, तो मैं आपको बता दूं, पूरे गुजरात मिला करके अराउंड
50-60 लाख बच्चे तो गुजराती मतलब गुजरात गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ते होंगे, पूरे गुजरात को मिला करके। आपको लगता है कि अगर आपकी प्राइवेट स्कूल्स की फी माफ की जाए तो वो गवर्नमेंट की स्कूल की फी, स्कूल के बच्चों की एजुकेशन, उनके टीचर्स का सैलरी कौन देता है? कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। अरे गवर्नमेंट नहीं दे रही है, हमारे गजों में से जा रहा है, पॉकेट में से जा रहा है बॉस। आप ये अगर बोल रहे हो कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, मिठाइयां बांट रहे हो, तो आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। गवर्नमेंट के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट का 8वें पगार पंच का पगार पता है आपको टीचर का कितना है? आप सुन लोगे ना तो पैरों तरह जमीन निकल जाएगी। कितने टीचर्स थे, गो फाइंड आउट। सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि आप गूगल करोगे ना तो गूगल पे भी नहीं मिलेगा कि गवर्नमेंट स्कूल कितनी है अभी यहाँ पे। सेक्टर्स वाइज स्कूल इतनी है जिनके इतने सारे टीचर्स के पगार ये 4 महीने में जब बंद था, आप जिसके लिए लड़ाई कर रहे हो ना, वो पगार ऑलरेडी गया हुआ है और वो हमारे पॉकेट से गया है, एक आम आदमी के पॉकेट। खुशियां मना रहे हो तो जरा पॉज ले लो और ये सच्चाई जान लो। तो ये पहला मैसेज आपको है कि जरा आप गलत जगह पे लड़त निकाली है। लड़त वहां मत निकालो, लड़त वहां निकालो जिनको आपने वोट दिया हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट को मेरे लिए, देखो मैं गुजरात गवर्नमेंट को एजुकेशन के नाम पे अगर मुझे 10 में से रैंक देना होगा तो मैं 0 दूंगा, 0। दे डोंट हैव एनी सेंसिटिविटी इन टेकिंग एनी गुड डिसीजंस अबाउट एजुकेशन इन गुजरात। ये वही डिसीजन, इनको डिसीजन वैसे ही लेते हैं जैसे बाकी बिजनेस के लिए लेते हैं। अरे भाई साहब, अगर आपने आपके पास कोई प्लान है, आपके पास कोई प्लान है? हमारे पास आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जीएससी बोर्ड है। आपने उठा करके बोल दिया 2 दिन तो बंद रहा, अब आगे कितने दिन बंद रहेगा आपको पता नहीं। और 10 दिन के बाद अगर आपको अक्ल आई कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, आपने बोल दिया, तो 10 दिन का तो एजुकेशन गया, वापिस बेचारे पेरेंट लड़ते रहेंगे। भाई आपके पास कोई प्लान नहीं है। अगर प्लान होता ना तो आप गूगल पे जाकर के देख लो पिछले 5 साल में कितने मतलब गवर्नमेंट स्कूल में से ड्रॉप आउट हुआ है। और अगर इतना ही अच्छा आप पढ़ाते हो तो आप ही के गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? आपके जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? भाई गुजराती स्कूल में पढ़ाओ ना। तो इतना कॉन्फिडेंस, ऐसे हेवॉक डिसीजन मत लो भाई। मतलब लोगों की जान जा रही है यहाँ पे। और अगर इतना ही आपको अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो करके दिखाइए भाई, गुजरात गवर्नमेंट करके दिखाइए कि अच्छे स्कूल्स ओपन करें और एटलीस्ट सीखिए दिल्ली गवर्नमेंट से कुछ के वहां पे एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है। सो दिस इज माय मैसेज टू गवर्नमेंट एंड थर्ड मैसेज टू डियर स्कूल्स, इतने लालची मत बनिए। 1 आध साल पैसा नहीं आएगा ना तो कुछ बिगड़ नहीं जाने वाला है। ये वही बच्चे हैं जिनका श्रेय लेकर के आप लोग पेपर में छापते हैं, हमारी स्कूल को गौरव। तो ये वही बच्चे हैं जिनको इस साल आप बिना फी के पढ़ाने के लिए ना बोल रहे हैं। तो लालची मत बनिए, जाइए। और ये तीनों को आपस में कुछ बात करनी पड़ेगी। पता नहीं कौन इनको मिलाएगा, भगवान ही मिला सकता है। बट देयर हैज टू बी सम कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स, गवर्नमेंट एंड स्कूल्स। अगर इन लोगों ने मिलके कुछ किया तो अच्छा होगा, नहीं तो राम राज्य प्रजा सुखी कुछ नहीं होना। गुजरात में एजुकेशन इज फ्लॉप शो। So that's a final message from my side, Mayuri. So thank you so much, Jay sir. It was quite informative and very useful talk with you. And we hope from your message people get awareness that yes, online education is here to stay, at least for some time. We don't know for how long, but it is here to stay. And it's time we embrace the online education because we have no choice. So thank you so much, sir.